جی دوستو، طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ دیکھیے ٹی ایس ٹیٹ 2024 کا پیپر فرسٹ اردو میڈیم والوں کا 1 جون کو ہونے والا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے آج کی کلاس میں ہم لوگ پریویس ایئر کوئسچن ای وی ایس کے متعلق دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ای وی ایس کے بھی 30 کوئسچن آپ کے آتے ہیں۔ ہم لوگ پریویس ایئر کوئسچن کو دیکھیں گے اور اس کو بالکل اینالائز کر کے دیکھیں گے، کیونکہ آپ کا سلیبس لمیٹڈ ہے اور اسی طرح کے سوالات اس سال بھی آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ کوئسچن ہے انہی کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل ہے، اس سے اگر جڑے نہیں ہیں تو آپ ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک ہے، اس پر کلک کر کے جڑ جائیں۔ اسی کے ساتھ لائک کریں۔ کلاس پوری ہونے کے بعد آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں، ویڈیو اچھی لگی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو شیئر کر دیجیے۔ جو آپ کا کامن گروپ بنا تھا اس میں جب آپ ڈی ایل ایڈ میں تھے، اس میں بھیج دیجیے، تاکہ جو اردو میڈیم کے طلباء ہیں ان کو فائدہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس چینل کے حصہ بن جائیں۔ اس کے بعد آپ کو ویڈیو ملے گی ٹی ایس ڈی ایس سی کی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے آلریڈی ویکنسی آپ کی آ چکی ہے، کس کی؟ ایس جی ٹی یعنی سیکنڈری گریڈ ٹیچر۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تیاری بھی اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کی کرائی جائے گی۔ چلیے پہلا کوئسچن ہم دیکھتے ہیں۔ انوائرمنٹل سائنس، اس کو انوائرمنٹل اسٹڈیز بھی کہتے ہیں، یعنی ماحولیاتی مطالعہ، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا کوئسچن دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ ایک شیر خوار بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں فقروں کی تعداد ہوتی ہے۔ دیکھیے فقرہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ورٹیبرا، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جوائنٹ ہوتی ہیں۔ وہ کتنی ہوتی ہیں یہی پوچھا جا رہا ہے، 26 یا 33، 31، 24 بتائیے۔ دیکھیے یہ آپ کی ہوتی ہے 33، اس کو یاد رکھیے گا، یعنی 33، ٹھیک ہے۔ آگے ہے درج ذیل میں یہ حشرات خور پودا ہے۔ نیچے آپ کے 4 آپشن ہیں، چاروں کیا ہیں؟ ایک پودے کے نام یعنی پلانٹ کے نام ہے۔ اردو میں کوئسچن اس کو انگلش میں بھی ہم لوگ سمجھیں گے۔ دیکھیے جو بھی چیز ٹرمینالوجی آپ کو سمجھ میں نہ آئے اردو میں، دیکھیے آپ کا کمپیوٹر بیس ایگزام ہے، اس میں جا کر کے آپ جو ہے اوپر بنا رہتا ہے، اوپر جا کر کے آپ انگلش والا آپشن چن لیں گے تو وہی سوال آپ کو انگلش میں بھی دکھنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو درجہ ذیل میں یہ حشرات خور، حشرات مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ان کو کھانے والا پودا کون سا؟ خور یعنی خوردن سے بنا ہے، مطلب کھانے والا۔ جیسے کہتے ہیں سود خور، سود خور کہتے ہیں نا، مطلب سود کھانے والا، تو وہی کھور کھور دونوں پڑھا جاتا ہے۔ تو حشرات خور پودا کون سا ہے؟ یعنی ایسا پلانٹ جو کیڑوں کو کھا جاتا ہے، بتائیے کون سا ہوگا؟ ایک ہے یوٹریکیولیریا، ٹھیک ہے، یہی ایک پودے کا نام ہے، اس کو یاد رکھیے گا، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے۔ یہی پودا ایسا ہے جو حشرات یعنی کیڑے مکوڑے کو کھا جاتا ہے۔ آگے ہے گڑہل، ایلویرا، ساگوان، یہ سب نہیں ہے بلکہ یہی والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلیے، آگے پوچھا جا رہا ہے درجہ ذیل میں صحیح جوڑی کی شناخت کیجیے۔ صحیح جوڑی کی شناخت یعنی جیسے کہا جا رہا ہے متبادلہ جڑیں جو ہوتی ہیں نئے پودے جنم لیتی ہیں، کس میں؟ آلو میں۔ اور اسی کے ساتھ ہے متبادلہ نئے تنے سے، یعنی متبادلہ تنے مطلب ہوتا ہے کیا؟ وہی شاخ، تنے سے نئے پودے جنم لیتے ہیں، رتالو۔ بلب یا جذع سے نئے پودے جنم لیتے ہیں، گنا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ برگی کلیوں سے نئے پودے جنم لیتے ہیں، زخم حیات۔
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये चौथा वाला है, बरगी कलियों से नए पौधे जन्म लेते हैं ज़ख्म हयात, ठीक है, ज़ख्म हयात वाले पौधे। आगे क्या है, दर्जा झेल में इडली बनाने, जैसे आप देखिए इधर साउथ में तेलंगाना में इडली खूब खाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद आती है, चावल की बनती है। किससे बनती है, क्या भाप से बनती है या इडली को भूना जाता है या गहरा तलना यानी खूब ज़्यादा तला जाता है, वो तो चिकन 65 को तल के बनाते हैं, हल्का सा तलना। बताइए, देखिए इसको भाप से, क्योंकि स्टीम का बर्तन भी आता है इडली बनाने का, ठीक है, तो ये भाप से बनता है। बहुत इजी सवाल आया था, ठीक है। पत्ते के वरकचा मतलब होता है पत्ती वाली लेयर, ठीक, में आम तौर पर ये नहीं होता। कौन सा नहीं होता, कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, मियाने रगें और रगेज़े या तना। देखिए तना नहीं होता, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आबी ज़खायर में पानी की सतह की पैमाइश की जाती है। अगर कहीं पानी स्टोर है, कोई हाउस है, कोई तालाब है, तो पानी की गहराई किससे आप जानेंगे, बताइए। गैलन से, सेंटीमीटर से, फीट से। देखिए पानी क्या फीट से देखते हैं, यानी कई फीट गहरा पानी है, किससे, फीट से करते हैं, ठीक है। जिल्द से मुताल्लिक बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। देखिए डॉक्टर अलग अलग होता है, कोई जिल्द, कोई जो है दांत का इलाज करता है जिसको क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कह देते हैं। इसी की तरह जिल्द यानी स्किन रोग के मुताल्लिक डॉक्टर को क्या, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट जो नसों के बारे में जानते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट यही है, डर्मेटोलॉजिस्ट वाला जो डॉक्टर होता है वो स्किन के बारे में, स्किन का डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो अलग अलग डॉक्टरों की टर्मिनोलॉजी है इसको आप देख लेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा आपका, ठीक है। और फिर बच्चा जब पैदा होता है कितनी हड्डी होती, कैसे हैं, इससे भी सवालात पूछे जाते हैं। दर्जा झेल में ग्रीन हाउस गैस, ये क्या है, एनवायरनमेंट से सवाल है। आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर, हैदराबाद में भी इस साल जो है टेम्परेचर कितना 42, 43, 44 तक पहुंच गया। और दिल्ली में तो अभी देखेंगे 2 दिन पहले टेम्परेचर 53 तक पहुंच गया था। तो क्या है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। अब बताइए ग्रीन हाउस गैस क्या है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। देखिए मीथेन गैस है, क्या है, मीथेन गैस जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का जो, जैसे आप देखेंगे जहाँ कचरा वगैरह जमा हो जाता है उससे जो गैसें निकलती हैं वहाँ मीथेन गैसें पाई जाती हैं। और ग्रीन हाउस गैस में आप देखेंगे जो फ्रिज से गैस निकलती है ये भी ग्रीन हाउस में है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस, यानी जो आपकी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपका इससे भी मुताल्लिक सवाल आएगा, ठीक है। ग़िज़ाइयत की जदीद साइंस के बानी, ग़िज़ाइयत के जदीद साइंस के बानी कौन है, ठीक है। ये है लवाशेर करके नाम है, वही इसके बानी है और ज़्यादा लोगों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुंदरजा झेल में ठहरे हुए पानी से पैदा होने वाली बीमारी। कहीं पानी अगर इकट्ठा हो तो उससे कौन सी बीमारी, आपको पता है पानी इकट्ठा होता है वहाँ मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, आजकल डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। तो क्या इससे निमोनिया की बीमारी होती है या पोलियो की या इसहाल की या तशनज की, बताइए। देखिए जब पानी जब कहीं ठहरा हुआ होता है उस पानी को अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है तो उससे इसहाल का मतलब होता है, आपने डायरिया सुना है, यानी दस्त आने लगता है, ठीक है। आदमी को 2 नंबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। वही इसहाल यानी पेट उनका ढीला हो जाता है, किससे, जमे हुए पानी को अगर इस्तेमाल कर लें, पी लें खाने पकाने में। ये गंदगी पानी में मौजूद बीमारी फैलाने वाले नुकसानदेह यानी उज़ुओं को हलाक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी चीज़ है, कौन सी इसमें ऐसी दवा है जिसमें जो पानी जब जमा हो जाता है उसमें की गंदगी को साफ़ करती है, बताओ। आयोडीन है, ठीक है,
क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। देखिए क्लोरीन की एक गोली आती है, ठीक है। आप देखेंगे जब ये बरसात के मौसम में जब मच्छर ज़्यादा पैदा होने लगते हैं तो जो म्युनिसिपल वाले हैं, इसी तरह गांव देहात में जो प्रधान होते हैं, काउंसलर हैं, उनके यहाँ गोलियां बांटी जाती हैं और कहा जाता है जिनके आसपास कूलर जिसका पानी निकाल नहीं सकते, कहीं अगर टंकी में पानी जमा है आप निकाल नहीं सकते, वहाँ इन गोलियों को डाल दीजिए, ठीक है। इसी की तरह केरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी डलवाते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या है, ये गंदगी पानी में मौजूदा बीमारी फैलाने वाले, यानी आप देखेंगे जो पानी वाटर सप्लाई किया जाता है उसमें वो दवा डाल करके पीने के लिए घरों घर वाटर सप्लाई किए जाते हैं। तो क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है तिब्बी और सनाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उनसुर। तिब्बी और सनाती मकासद के लिए किस उनसुर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फेल्डास्पार यानी बेरेम। देखिए बेरेम ही एक ऐसा आला है जिसका इस्तेमाल तिब्बी यानी मेडिकल और सनाती यानी इंडस्ट्रियल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेपाल हिंदुस्तान के किस किनारे पर वाक़ है। ये देखिए जियोग्राफी यानी जोग्राफिया से सवालात आपके पूछे जा रहे हैं। बताइए कहाँ वाक़ है, जनूब मशरिक़ में, शिमाल मगरिब में, शिमाल मशरिक़ में या जनूब मगरिब में। देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, नेपाल कहाँ है, आपके शिमाल की जानिब यानी नॉर्थ की जानिब, ठीक है। अब उसमें नॉर्थ में फिर मशरिक़ भी जोड़ा गया है, मगरिब भी जोड़ा गया है, तो अब बताइए कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसमें शिमाल मशरिक़ यानी पूरब, ठीक है, तीसरा वाला सही है। आगे है सिंध के लोग उस मुल्क से तिजारत करते जिसके कई शहर तरक्की याफ्ता थे। यानी सिंध पंजाब के लोग किस मुल्क से तिजारत कर। देखिए क्लास 3 से 5 तक के जो किताब से इसमें पूछा जाता है, उसमें किसी जगह दिया गया होगा। एक क्या था, इराक़। सिंध के लोग इराक़ जाते थे। इराक़ की सिविलाइजेशन, वहाँ का कल्चर बहुत पुराना है। मेसोपोटामिया करके वहाँ बहुत पुरानी जो है सिविलाइजेशन और कल्चर माना जाता था। कहाँ, इराक़ जाया करते थे। इराक़ को तो अब बाद में अमेरिकन उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि इराक़ पे आप 2006 में अटैक करके अमेरिका ने वहाँ का जो प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन था उसको फांसी दे दिया। उसके बाद वो बिल्कुल वो जो है वो कठपुतली हो गया इराक़, ठीक है। नहीं तो उसकी कल्चर और सिविलाइजेशन बहुत पुरानी मानी जाती थी। मुंदरजा झील में दस्तूर साज असम्बली के मकासद, यानी दस्तूर साज असम्बली के मकासद क्या हैं। माशी इनकलाब, समाजी इनकलाब, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का हुसूल, सियासी इनकलाब। बताइए क्या होता है। देखिए माशी इनकलाब यानी इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन, ठीक है, माशी इनकलाब ही मकसद होता है। आगे क्या है, मुंदरजा झील में एक दस्तूर हिंद का बुनियादी उसूल नहीं है। बताइए कौन सा दस्तूर हिंद का बुनियादी उसूल यानी उसका रेफरेंडम में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है। हुकूमत का ढांचा ये तो है, ये क्या है, फलाही रियासत ये भी है। हुकूमत की सदारती शक्ल ये चीज़ गलत है। और वफाकियत जिसको आप कहते हैं फेडरल सिस्टम आप समझते ही हैं, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ जैसे स्टेट पे भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे यानी दिल्ली की हुकूमत जो है यहाँ स्टेट की हुकूमत में भी बहुत सारी चीज़ों में दखल अंदाजी देती रहती है। क्या है, फेडरल होता है, यानी सारा काम अपनी मनमानी से आप नहीं कर सकते। अरावली पहाड़ियों के साइबानी खित्ते में क्या चीज़ है। अरावली की पहाड़ियों के साइबानी खित्ते में क्या पाया जाता है। सतह मुरक्का मालूदा या थार देखिए थार रेगिस्तान पाया जाता है अरावली के पहाड़ियों में। बस ठीक है, जी के टाइप है। आगे क्या पूछा जा रहा है, हालैंड में लोगों ने समंदर के पीछे, ठीक है, ढकेलने के लिए, ठीक है, ढकेलने के लिए डाइक्स कहलाने वाले पश्ते बनाकर समंदर में ज़मीन के छोटे हिस्सों को दोबारा हासिल किया। वो ज़मीन क्या कहलाती है इस टेक्निक से, वो है पोल्डर। क्या कहलाती है, पोल्डर कहलाती है, ठीक है।
राजा जिसने कंधार या महादेव का मंदिर तामीर करवाया था उस राजा का क्या नाम था। ठीक है, ये आप दर्जा 3rd से 5th तक की किताबों में अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। क्या था? धंग देव। ठीक, क्या था? धंग देव नाम था उसका। ठीक है, आगे चलिए। आगे है 141 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? मुंदरजा झैल में से एक शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ नहीं है। कौन सा शहरी का एक बुनियादी फ़र्ज़ नहीं है? अवामी मुल्कियतों का तहफ़्फ़ुज़ और तर्क तशद्दुद। तशद्दुद को तर्क करना, जो मिल्कियत है आवाम की पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी हिफाजत करना, ये तो यानी ड्यूटी है। ठीक है। हर किस्म की जबरी मशक्क़त की मुमानात, बताइए, यही है। हर किस्म की जबरी मशक्क़त की मुमानात, ये तो समझ में आ रहा है कि यही हो सकता है, ये ड्यूटी नहीं है। मुल्क की जामे सकाफ़त से भरपूर वर्षे का तहफ़्फ़ुज़, ये तो सही है। तमाम इनफरादी इज्तिमाई सरगर्मियों में सरबुलंदी की कोशिश, ये भी सही है। यही दूसरा वाला जो है ड्यूटी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे है, ओह जिसने कहा कि विजयनगर शहर में किले के 7 हल्के हैं। किसने ये बात कहा था कि विजयनगर शहर में किले के 7 हल्के हैं? इस बात को किसने कहा था? देखिए, अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने अपनी हिस्ट्री किताब में लिखा है। ठीक है। मुंदरजा झैल में से जो बच्चों का हक़ नहीं है, इसमें से कौन सा बच्चों का हक़ नहीं है? हक़ तहफ़्फ़ुज़ ये तो है, हक़ बक़ा यानी उनको बाकी रहना, यानी ज़िंदा रहना, ये भी है। कौन सा नहीं है? हक़ मुसावात, ये नहीं है। ठीक है, बच्चों में ये सब नहीं है, बड़ों में है। ठीक है। इश्तिराक का हक़, ये भी है। ठीक है, मिला जुला करके तीसरा हक़ मुसावात यानी इक्वलिटी। आगे, हर माह मुनाक़िद किए जाने वाली गांव की पंचायत मीटिंग में कम से कम कितने लोगों की तादाद मौजूद होना चाहिए? एक इससे पॉलिटी से आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है गांव की पंचायत में प्रधान होते हैं हर महीना, यानी लोग सब उसमें जो होता है ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है। ठीक है, तो कितने लोगों को ग्राम पंचायत जब बैठती है, कितने लोगों को मौजूद होना उसमें ज़रूरी होता है? बताइए कितने लोगों को? हर माह मीटिंग कम से कम 50% हाज़िरी, हर माह मीटिंग कम से कम 25% हाज़िरी, हर माह मीटिंग कम से कम 50% हाज़िरी। हर एक मीटिंग, हर माह एक मीटिंग, यहाँ क्या है 2 मीटिंग थी, हर माह एक मीटिंग कम से कम 25%। इसमें से कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा? तीसरा, हर माह एक मीटिंग। महीने में कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, कम से कम 50% लोग उसमें हाजिर होने चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा के जितने सदस्य हैं उसमें से 50% हाजिर होने चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअली हाजिर हो ना हो, लेकिन कहा गया है 50% हाजिर होने चाहिए। अब एनवायरमेंटल जो साइंस है उसके मेथड्स यानी मेथडोलॉजी, जिसको हम पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं, यानी कैसे आप एनवायरमेंटल साइंस को, एनवायरमेंटल स्टडीज़ को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बताइए, दर्जा झैल में मुअल्लिम मरकूज़ तरीक़े तदरीस की शनाख्त, यानी ऐसे तरीक़े तदरीस यानी टीचिंग के मेथड जो टीचर सेंटर्ड हों। बताइए इसमें से कौन सा है? तारीख़ी तरीक़ा, तफवीज़ी काम का तरीक़ा, मुबाहसा का तरीक़ा, इंकशाफी तरीक़ा। बताइए कौन सा होगा? देखिए, तारीख़ी तरीक़ा। अब टीचर आकर के तारीख़ के बारे में हिस्ट्री बता दे, बच्चे चुपचाप सुन लें, ये क्या है? मुअल्लिम मरकूज़। मुतअल्लिम मरकूज़ में बच्चा खुद सेंटर में होता है, बच्चा करके सीखता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। प्राइमरी सतह पर माहौलियाती मुताला यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की कुतुब को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए। किस तरह उनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए? आलमी से मकामी तक, तस्वुर से ठोस तक, पेचीदा से सादा तक, मालूम से नामालूम। ये चौथा वाला, यानी हम इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी कुछ वसूल होते हैं मालूम से नामालूम तक। पहले ऐसी मिसालें देंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बच्चों को पहले से मालूम है, फिर उसके ज़रिए हम एक कायदा बना करके बच्चों को नामालूम वाली चीज़ों को पेश करेंगे। कौन सी? यही होना चाहिए ईवीएस की किताबों में। ठीक है,
آگے کیا پوچھا جا رہا ہے، ایک استاذ نے طلباء کو اسکومس کے مسکن یعنی ہیبیٹنٹ اور ان کے گھروں اور انگلوز کو کپاس اور کارڈ بورڈ استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا سہرخی یعنی 3 ڈائمینشنل ماڈل، یعنی جیسے اس طرح سے ایسا ماڈل جس کے 3 ڈائمینشن، ایک یہ ہوا، ایک یہ ہوا، ایک ہوا، اس طرح سے بنا کر کے ٹیچر سمجھا رہا ہے۔ تو یہ ٹیچر کیا کر رہا ہے بتائیے، مناظرہ متغیر بین یعنی ڈائیوریما کر رہا ہے، نمونہ بتا رہا ہے، حرب ریم کر رہا ہے یا ایکوریم۔ دیکھیے یہی ہے، ڈائیوریما کا بھی مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کے 3 جہت ہو۔ تو طلباء کو اسکیموز کے مسکن اور ان کے گھروں کو کپاس اور کارڈ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹا سا 3 ڈائمینشن، تو 3 ڈائمینشنل اسم پایا جاتا ہے ڈائیوریما میں، ٹھیک ہے، پہلا والا آپشن آپ کا صحیح ہوگا۔ آگے کیا پوچھا جا رہا ہے، مندرجہ ذیل میں سے جو ماحولیاتی مطالعہ کے اہم پہلو میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، فطرت ہے، انسان ہے، سماجی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ABC کے درمیان تعاملات ہے، دیگر سماجی علوم کے ساتھ گردش ہے۔ دیکھیے صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔ دیکھیے فطرت تو ہے ہی ہے، انسان بھی ہے، سماجی ادارے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ABC، ٹھیک ہے، اور ABC کے درمیان تعلق، ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان آپس میں تعلق بھی ہونا چاہیے، ABC اور D، ٹھیک ہے، اور ABCDE، تو اس طرح کا کوئی آپشن نہیں تھا کہ جس میں ABC اور D چاروں رہے، تو اس لیے آپ کے ٹی اسٹیٹ والوں نے سب کو ایک ایک نمبر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ویسے جو ایک ABCD چاروں صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیگر سماجی کے علوم سے گردش سے غلط تھا۔ آگے چلیے، پوچھا جا رہا ہے اے نقشے پہاڑوں، سطح مرتفع، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، دریائی وادیوں، صحراؤں کے بارے میں حقیقی اور قدرتی انداز میں طلباء کو سکھانے میں استاذ کے لیے زیادہ مددگار ہوتے ہیں۔ کون سا نقشہ جس میں ہم پہاڑی سطح اور یعنی پہاڑ میں جو اوپر بلندی چیز ہے اس کو بتانے کے لیے، اور دریائی وادیوں کو، صحراؤں یعنی جنگلوں کے بتانے کے لیے، اور حقیقی قدرتی انداز میں طلباء کو سکھانے کے لیے استاذ میں کون سا نقشہ زیادہ مددگار ہوگا؟ طبعی نقشے، نقشہ کا خاکہ، نباتی نقشے، جغرافیائی۔ دیکھیے طبعی نقشے یعنی نیچرل نقشے سب سے زیادہ مددگار ہوں گے۔ آگے پوچھا جا رہا ہے حسب ذیل فہرست A کو B کے جوڑے سے ملانا ہے۔ فہرست A میں کیا ہے، تصورات کی تفہیم، معلوماتی مہارتیں، نقشے اتارنا، توصیف و اقدار۔ آگے ہے دوسروں کے خیالات کا احترام، درجہ بندی، وضاحت، ڈیٹا کی ترجمانی، گوگل نشاندہی کے ذریعے منزل تک پہنچنا۔ بتائیے کون والا آپشن صحیح ہوگا؟ تھوڑا سے مشکل مانا جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں اگر کہا جائے تو اس میں آپ کا اگر چاروں آپشن دیکھا جائے تو یہ ملا جلا کر کے B والا دوسرا آپشن صحیح ہوگا، کیونکہ اس میں ہے کیا چیز، A ہے نا، A کیا ہے، تصورات کی تفہیم۔ اس کے لیے کیا ہے، جب کوئی چیز درجہ بندی میں بانٹ کر کے اس کی وضاحت کریں گے تبھی تصور یعنی صحیح بیٹھے گا۔ یہ تو اس سے مل جا رہا ہے۔ اس کے بعد B والا معلوماتی مہارتیں، ڈیٹا کی ترجمانی، جو کچھ ڈیٹا ملا ہوا ہے، آنکڑا ملا ہوا ہے، اس کی ترجمانی کریں گے تو معلوماتی مہارتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد اور C والا کیا ہے، نقشے اتارنا۔ یہ کیا ہے، گوگل نشاندہی کے ذریعے منزل تک پہنچنا، ٹھیک ہے، یہ اس سے مل گیا۔ آگے کیا ہے، D والا توصیف و اقدار، یعنی دوسروں کے خیالات کا جب آپ احترام کریں گے تبھی اس کے وصف کو سمجھیں گے، تبھی اس کی ویلیو کریں گے، ٹھیک ہے، تو ملا جلا کر کے اس طرح سے بنے گا، تو B والا آپشن آپ کا صحیح ہے۔
तो इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली, कुछ आपको समझ में आया कि किस तरह से सवालात हमको तैयार करने होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आखिर में फीडबैक दीजिए। और लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज़रूर जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और चैनल के मेंबरशिप लेने के लिए आखिर में ज्वाइन बटन दबा करके आप चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।